तो स्क्रीन विजिबल है? इज द स्क्रीन विजिबल? Okay. So this is your chapter number 5 from the syllabus, Elements of Transmission Line, and I have uploaded two short videos that is actually covering the all the topics almost. Have you people gone through that videos or not? Because I am seeing no, you people are not viewing the video. So what I want to tell you that if you are thinking that you will see at the last, you will miss many points for the exam. You cannot comprehend at the last moment. And at last you will see okay 10 minutes 20 minutes videos are there, so it can be coverable, but you will not be able to comprehend all the things. So when question will be asked, it may look that it is not are not possible to answer the correct one. This happens last time. Those students who have attended and were regular, they were at least able to understand the questions. Many of the students could not grasp the questions even. So what I am looking at, nobody is watching videos. Why this is happening? Anyone? Where are you people busy? आप लोगों ने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है पढ़ाई. Otherwise you could have must have asked some important questions. Until unless we will not go through the literature and videos, we will not be able to raise questions. Questions are not coming means you have not gone through these things. So how you will cope up with the preparation of exam? Tell me. It's a very important subject, very easy one, but very important. You will be able only to learn the subject when you learn regularly. क्या बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं आ रही है? हाँ मैं वही पूछ रहा हूँ. आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे? नहीं, रेगुलर तो होना ये है कि आपको जो टास्क दिया गया उसको आप कंप्लीट करें. हाँ, क्योंकि मैंने अभी तक 2-3 जो बार है पूछा कि आप लोगों को कोई दिक्कत है, तो नहीं है तो अच्छी बात है. दैट इज गुड क्योंकि सब्जेक्ट इतना टफ नहीं है. बट स्टिल सम स्मार्ट क्वेश्चंस कैन बी रेज्ड जो रियली में क्वेश्चंस हो. टाइम पास की बात नहीं कर रहा हूँ. But really with some confusions always will be there. If you are going through the subject, if you are learning a chapter, one or two, and that could be common to many of students. आपको अगर कोई एक दो भी दिक्कत हो रही है कि चलो मुझे ये जो है यहाँ तक तो समझ में आ रहा है, ये बात थोड़ा सा लिंक नहीं हो रहा है, क्योंकि बुक को इस तरह से नहीं लिखा गया है कि हर चीज को लिख दिया जाए. Some questions should be from your side. Not I am saying कि simple questions like what is transmission line, that is written in the book. But few questions could be there. Sir, why this flow of information? Certain of it is transmission line, then comes transformer, then comes conductors, then comes poles, fuses. ये टॉपिक पढ़ा आप लोगों ने? मैंने लास्ट वीक ही शायद दिया है. इसके पहले जनरेशन मैंने दिया है आपको. फ्यू सिंपल क्वेश्चंस हैं जहाँ पर आपके क्लास 10th के हैं, इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा अपग्रेड कर रहे हैं हम लोग, और कुछ नहीं कर रहे हैं. तो नहीं है, ज्यादा है. तीन तरह के पावर प्रोडक्ट हैं, कोई ज्यादा नहीं है. थोड़े से उसमें जो है वो एलिमेंट्स ऑफ पावर सिस्टम को थोड़ा और एक्सपेंड किया गया है, आपको डिटेलिंग की गई है. सो ट्रांसमिशन लाइन के लिए मैंने भेजा आप लोगों को. दो वीडियोस हैं वो 10-10 मिनट के. एक में मैंने समरी बताई है, एक में मैंने पूरा डिटेल, एक आपको स्लाइड शेयर पे एक पीपीटी है.
सो इट इज नॉट सारा कुछ कवर कर रहा है आपके लेवल पे। मुझे लगा नहीं किसी ने देखा है। तो वेट कर रहे हैं कि लास्ट देखेंगे तो। देखा है आप लोगों ने? सुना उसको? नहीं, बुक का तो मटेरियल मैंने दे दिया कि जस्ट गो थ्रू इट, इट इज मोर देन योर सिलेबस, बट इट इज नॉट अ बिग बिग बुक। ये कोई बहुत बड़ी किताब तो है नहीं, ये तो कवर का है हर चैप्टर एक्चुअली। आपके रीडिंग स्पीड के अकॉर्डिंगली ये 1 आवर का बुक है, 1 आवर का हर चैप्टर है। एक दो चैप्टर को हटाते हैं जो कॉन्सेप्चुअल है। सो दिस बुक कैन बी completed in 50 hours maximum from your side even. I'm not talking from my side. So ट्रांसमिशन लाइन कितने लोगों ने समझा जो मैंने भेजा था वीडियो? कितने लोगों ने देखा? किसी ने देखा, किसी ने पढ़ा? क्या? वॉइस नहीं मिल रही है। चलिए कोई बात नहीं। मैंने जो आपको ये हाँ मटेरियल भेजा है, सी व्हाट यू आर स्टडिंग इज इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम, है ना। यूनिट 2 इज अबाउट इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम। और इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम के मैंने कहा कि डिफरेंट पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज योर जनरेशन। पावर को कहीं पे हमने जनरेट किया, जनरेट करने के बाद इसको हमने ट्रांसमिट किया, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया। देन कम्स द यूटिलाइजेशन। सो ये आपका थर्ड है एक्चुअली, आप समझ लीजिए। दिस इज योर फोर्थ, दैट इज यूटिलाइजेशन। इसके अलावा जो है इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है प्रोटेक्शन। उसके बाद और भी चीजें हो जाएंगी, इकोनॉमिक कंसिडरेशन, जिसमें आपको टैरिफ्स हो जाते हैं कि कितना आपके जो है प्रीमाइस में जो है रेट ऑफ जो इलेक्ट्रिसिटी होती है। सो ये तो हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। इसके अलावा और बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है तो वहां तक नहीं जा रहे। तो आपको जो है प्रोटेक्शन भी थोड़ा सा जानना है। यूटिलाइजेशन जो है उसमें डिपेंड करेगा क्या कौन से कस्टमर हैं। यूटिलाइजेशन जो हो रहा है कौन यूटिलाइज करेगा, कोई कोई कस्टमर यूटिलाइज करेगा तो कोई रेसिडेंशियल हो सकता है, हाँ कोई कॉमर्शियल हो सकता है, इंडस्ट्रियल हो सकता है। जैसे रेसिडेंशियल का मतलब है आपका होम, कॉमर्शियल मतलब आपके स्कूल की या कोई और कोई, मान लीजिए सिनेमा हॉल है, कोई मॉल है, ये कॉमर्शियल कंज्यूमर्स हैं। इंडस्ट्री मतलब कि कोई भी अगर इंडस्ट्री हो सकती है, जैसे रेलवे भी एक इंडस्ट्री है एक तरह से। इसके अलावा जितने तरह की आपके मैन्युफैक्चरिंग है या फिर सर्विसेज वाली इंडस्ट्री है, कोई अगर कहीं कोई सर्विस सेंटर चल रहा है, कॉल सेंटर चल रहा है, ये सारे कंज्यूमर्स ही हैं। हाँ इंडस्ट्री में नहीं आएंगे, सॉरी, ये कॉमर्शियल में। सो जनरेशन पार्ट इज चैप्टर नंबर आई थिंक 4। चैप्टर नंबर 4 is generation part and chapter number 5 is your transmission part. चैप्टर नंबर 6 जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट है। और इसके बाद जो है आपका वो यूटिलाइजेशन पार्ट आ जाता है, डोमेस्टिक कंज्यूमर की, रेसिडेंशियल कंज्यूमर की। इतनी ही है। सो ये सारे जनरेशन सिस्टम है, ट्रांसमिशन सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, डिफरेंट सिस्टम। ठीक है। सो ये जो आपको जो चैप्टर है इसको अगर थोड़ा सा अगर रीडिफाइन करें तो इसका नाम ज्यादा अच्छा रहेगा, एलिमेंट्स ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम। ट्रांसमिशन सिस्टम कहाँ से शुरू होगा? जैसे हमने जनरेशन कर दिया पावर का, अब ये जनरेशन जो है वो थ्री फेज जनरेशन है। तो जनरेशन वोल्टेज हो सकता है कि 22 किलो वोल्ट हो, 11 किलो वोल्ट हो। और जब हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, इसको ट्रांसमिट कर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन की, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन मैं बात कर रहा हूँ।
ठीक है, दिस इज लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन। तो जब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन करेंगे हम, सो पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट। बताया था ना चैप्टर नंबर 1 में आपने पढ़ा था पावर का अगर रिलेशन ऐसे देखा जाए रफली। सो पावर कैन बी प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, पावर भी कैन बी प्रोपोर्शनल टू करंट। तो हमें क्या बढ़ाना चाहिए, वोल्टेज बढ़ा देना चाहिए ट्रांसमिशन का, कि करंट अमाउंट ऑफ करंट बढ़ा देना चाहिए? क्या बढ़ाना चाहिए? दोनों बढ़ा देना चाहिए। कौन सा बढ़ाना चाहिए पावर बढ़ाने के लिए? वोल्टेज बढ़ाना चाहिए। करंट बढ़ाने में क्या दिक्कत है? नहीं, वो बढ़ाने के बाद क्या होगा, इस वायर, ये जो ट्रांसमिशन लाइन है इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो जितना, यस, तो इट इज प्रोपोर्शनल टू योर आई स्क्वायर एंड आर। सो जितना ज्यादा आपका करंट का फ्लो होगा उतना ज्यादा हीट लॉस होगा। तो हम क्या करते हैं, जो आपका ओम्स लॉ है ना, सो हम ये देखते हैं कि हमें इसको इंक्रीज कर देना है, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन करना है, हाई करंट ट्रांसमिशन नहीं करना है। तो जो भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन है वो क्या हो रहा है, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन है। इट इज अ हाई वोल्टेज। दूसरा फायदा क्या है कि V इज इक्वल टू, जो मैं कह रहा था यहाँ पे ओम्स लॉ से, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो जितना I कम रहेगा, आई आर यानी ड्रॉप इन द वोल्टेज कम रहेगा। इसका मतलब है कि मैं सेंडिंग एंड, ये सेंडिंग एंड है मान लीजिए, ये रिसीविंग एंड है। तो यहाँ से यहाँ के बीच में जो है आई आर ड्रॉप कम होगा। इसका मतलब है मैं जितने वोल्टेज यहाँ से सेंडिंग वोल्टेज होगा, रिसीविंग वोल्टेज भी उसके आसपास रहेगा। सो वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। तो ये दो बेनिफिट्स हैं। सो अब सवाल है कि ये 22 किलो वोल्ट है, और जो डेटा है हमारे पास वो है, ये है कि जो सेंडिंग जो वोल्टेज है वो 200 किलो वोल्ट से लेकर के 400 किलो वोल्ट, या इंडिया में भी 765 किलो वोल्ट तक जा रहा है। जो ट्रांसमिशन वोल्टेज है वो कहाँ तक जा रहा है, ये आपका जनरेशन है। ये समझिए कि अगर हमने कहा कि ये हमने ट्रांसमिट किया, ये आपके जो है पोल्स होते हैं जो आपने देखे होंगे, हाई वोल्टेज जो ट्रांसमिशन लाइन होते हैं, लैटिस पोल्स कहते हैं उसको हम लोग। देखा होगा ना ये, बहुत बड़े बड़े शहर से बाहर ही दिखाई देते हैं। हाँ हाँ, क्योंकि ये आउटस्कर्ट्स पे हैं, सिटी से दूरी चल रहे हैं। सिटी में इंटर करते समय फिर हम किसी भी स्टेशन में ही लेके आएंगे। सो ये जो आपके हैं वो वेरी हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन है। तो मैं अगर एक एक रफली ले लूं, अज्यूम करिए कि 400 किलो वोल्ट है, यानी कि आपका 4 लाख वोल्ट्स। सीधी सी बात ये हो रही है। ठीक है, यहाँ कितना हो रहा है 22,000 वोल्ट्स। तो 1000 को लाख में अगर हमने कन्वर्ट किया, सो व्हाट वी नीड बिटवीन जनरेटर एंड दिस ट्रांसमिशन लाइन, दिस इज योर ट्रांसमिशन लाइन, क्या लगाना पड़ेगा बीच में हमें? वेरी गुड, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। सो यहाँ हमने अगर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर लगाया, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर लगा दिया, मैं टीआरएफ लिख रहा हूँ ट्रांसफॉर्मर को। फिर यहाँ पे कोई कंज्यूमर अगर है, अज्यूम करिए कोई कंज्यूमर है यहाँ पे जो यूज कर रहा है 132 किलो वोल्ट। तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, ये, यस वेरी गुड, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लगाना। तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यहाँ लगाया हमने अगर, और फिर यहाँ से जो है हमने इसको जो भी कंज्यूम। सो अब मुझे बताइए कि दिस इज योर ट्रांसमिशन लाइन एक्चुअली, बट दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ ट्रांसमिशन, दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ ट्रांसमिशन। सो इन सबको मिला के मुझे क्या कहना अच्छा रहेगा, एलिमेंट्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन या एलिमेंट्स ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम? सिस्टम। अगर मैं कहूं कि हमारे चैप्टर का टाइटल ज्यादा अच्छा होता है एलिमेंट्स ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम, राजी हैं इस चीज से, या ट्रांसमिशन लाइन ही अच्छा है?
सिस्टम ज्यादा बेटर, सिस्टम में एलिमेंट्स बने हुए हैं, a system may be made of several components, so transmission line is one of the components, transmission line is one of the components। अब मुझे एक बताइए बात कि सपोज कि ये कंज्यूमर जो है वो कह रहा है कि अभी मुझे पावर नहीं चाहिए, मेरी फैक्ट्री या मेरा जो ऑफिस है बिल्डिंग वो क्लोज रहेगा फॉर नेक्स्ट 15 डेज ड्यू टू सम फेस्टिवल, और सपोज करिए कोरोना काल के कारण ये शट डाउन है। तो अब बताइए क्या करना होगा, जनरेशन रोक दूं कि ट्रांसमिशन रोक दूं, क्या करूं? हो सकता है कि यहीं से आगे की तरफ भी जा रहा हो कहीं पोल, ये कहीं आगे भी जा रहा हो सप्लाई, किसी और कंज्यूमर को जा रहा हो सकता है कि इलेक्ट्रिक रेलवे को जा रहा हो। क्या काट देना चाहिए, लेकिन अगर मान लीजिए कि इस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से यहाँ और भी कोई कंज्यूमर हो, कैसे काटेंगे, क्या करना हो? हाँ, सी, हमें क्या है कि सप्लाई को कंट्रोल करना है, मींस हम जो है ये कंट्रोल करना चाह रहे हैं कि व्हेन वी डिजायर द सप्लाई एंड वी व्हेन डू नॉट नीड द सप्लाई। सो हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिकल सप्लाई को कंट्रोल करने वाले एलिमेंट्स भी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करने वाले एलिमेंट्स चाहिए। इसका मतलब हमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी चाहिए कि जब हमें जरूरत है तो हम उसे यूज करें, जब जरूरत नहीं है तो हम उसको डिटैच कर दें, डिस्कनेक्ट कर दें फ्रॉम सप्लाई सोर्स, क्योंकि सप्लाई जो है वो और भी लोगों को चाहिए। तो अगर कनेक्ट या डिस्कनेक्ट करने का ऑप्शन हो हमारे पास, इज मोर बेटर, है ना? ठीक है, हम जनरेटर एंड, क्योंकि हो सकता है कि ये ट्रांसफार्मर से और भी कंज्यूमर्स हों कनेक्टेड, जैसे आपके घर के बगल से जो पोल आ रही है, आपके घर में जो बगल में जो पोल होता है, सप्लाई पोल जो होता है, उसमें क्या होता है कि तीन तारें चली आ रही होती है जहां से भी, एक तार लेकर के और एक न्यूट्रल, सपोज करिए ये 1 है, 2 है, 3 है, ये न्यूट्रल है। सो आप देखेंगे एक फेज, फेज जिसको कहते हैं वायर, एक न्यूट्रल आपके एक हाउस में है। हो सकता है कि दूसरे इससे जो है वो किसी दूसरे हाउस में जा रहा हो सकता है किसी तीसरे से जो है किसी तीसरे घर में जा रहा हो। तो अब मान लीजिए कि मुझे इस घर में सप्लाई को कट करके कोई काम करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पोल से कट कर दूं या यहाँ कुछ, नहीं नहीं नहीं, सिर्फ बिल्कुल वायर नहीं कट करना है, सब कट। हाँ, तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हम कुछ ऐसा स्विच लगाएंगे कि फेज भी कट हो जाए और न्यूट्रल भी कट, ठीक होगा? तो हमें क्या है, हमें जरूरत है स्विचेस की भी, है ना? हमें किसकी जरूरत है, स्विच करने की, स्विच की, ठीक है? तो स्विच का क्या, व्हाट इज स्विच, जिससे कि आप मैन्युअली ऑन कर सकते हो सर्किट को या ऑफ कर सकते हो। ये तो आप रूम में भी लगा के रखते हो, अगर आपके अपने रूम में ट्यूबलाइट्स लगे हुए हैं, है ना, फैंस लगे हुए हैं, और अब आपको जो है वो सोने जाना है, तो आप क्या करते हो, दोनों तो नहीं, पूरा तो सप्लाई नहीं करते हो, इस रूम का पूरा एमसीबी काट काट दो, आप जो है फैन का स्विच चलने देते हो, ऑन रहने देते हो, और लाइट का स्विच क्या करते हो, ऑफ कर। सो फर्स्ट कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज स्विच, ठीक है? अब अज्यूम करिए, अब अज्यूम करिए कि आपने अपने घर के एक सॉकेट में एक प्रेस आयरन लगा के रखा हुआ है, ठीक है? एक आयरन लगा के रखा हुआ है कपड़े प्रेस करने के लिए, और वो उतना इलेक्ट्रिसिटी ड्रॉ कर रहा है जितना कि आपका, आपकी स्विच की क्षमता नहीं है लगातार के लिए, ठीक है? तो स्लोली स्लोली क्या होगा, आप देखेंगे कि आपके जो स्विच हैं वो बर्न आउट हो जाएंगे, होता है ऐसा, आपके सॉकेट देखिएगा ब्लैक हो जाता है। सो दैट इज ड्यू टू ओवरलोड, ठीक है? तो स्विच यूज कर रहे हैं जब नॉर्मल, नॉर्मल कंडीशन मतलब जितने करंट लेवल के लिए हमने उसको डिजाइन किया है उतना ही करंट उससे फ्लो कर रहा है, उससे ज्यादा नहीं फ्लो कर रहा है। उससे ज्यादा अगर फ्लो करा रहे हैं आप और कुछ दिक्कत नहीं हो रही है तो वो क्या है, ओवरलोड कंडीशन है। कौन सा कंडीशन है वो, यानी लोड किसको बोल रहे हैं हम,
जैसे आप मैकेनिकल में लोड बोलते हैं ना, किसको बोलते हैं? मास को बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल में किसको हम लोग लोड बोलते हैं? अमाउंट ऑफ। तो उसको कहते हैं, एक हो गया नॉर्मल कंडीशन, दूसरा हो गया ओवरलोड कंडीशन। तो यहाँ क्या होगा कि आपका सप्लाई कटेगा नहीं, लेकिन धीरे धीरे करके आपकी तार जल सकती है या आपका सॉकेट जल जाएगा या ओवर हीट होगा। तो दैट इज ओवरलोड कंडीशन। थर्ड इज योर शॉर्ट सर्किट कंडीशन, यानी कि वो इतना ज्यादा करंट ड्रॉ करेगा कि थोड़े देर के लिए भी आपका सर्किट बेयर ना कर सके। तो मान लीजिए कि लाइव वायर था, उसके बगल से न्यूट्रल वायर था, इतना हीट हुआ कि इसके इंसुलेशन बर्न हो गए और ये दोनों आपस में कनेक्ट हो गए। स्टार्ट जो है एक आवाज हुई आपकी स्पार्क से। और या तो अगर आपके घर में कोई फ्यूज था, फ्यूज वो ब्लोन हो गया, या फिर कोई, आपने देखा होगा सर्किट ब्रेकर, सुना है वर्ड? कहते हैं एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, वो ट्रिप हो गया। सो fuse and MCB. So fuse comes for the overload condition and for the short circuit condition. लेकिन अगर हमको मैनुअली ऑन और ऑफ करना है तो हम फ्यूज को नहीं निकाल लेते हैं और लगा देते हैं, ऐसा नहीं करते हैं ना घर में, कि फैन चलाना है या नहीं नहीं। सो इसका मतलब है स्विच का यूज करते हैं जब हमें मैनुअली ऑन ऑफ करना है नॉर्मल कंडीशन। फ्यूज कब एक्ट करेगा? मैनुअली एक्ट करेगा या ऑटोमेटिकली एक्ट करेगा? कब एक्ट करेगा? नॉर्मल कंडीशन में एक्ट करेगा कि ओवरलोड में एक्ट करेगा? अच्छा, शॉर्ट सर्किट में भी एक्ट करना चाहिए जब ओवरलोड में एक्ट कर रहा है तो। ओवरलोड का मतलब है कि 2 एम्पियर रेटेड करंट था, इससे ज्यादा नहीं फ्लो करना था। मान लीजिए आपने 4 एम्पियर कोई डिवाइस लगा रखा है जो 4 एम्पियर ड्रॉ कर रहा है, स्लोली 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 ये बर्न हो जाएगा। लेकिन शॉर्ट सर्किट का मतलब है कि हो सकता है कि 500 एम्पियर का करंट सडन ड्रॉ होने लगे। ठीक है, दैट इज शॉर्ट सर्किट कंडीशन। सो फ्यूज का कैसे ऑपरेट करेगा? मैनुअली नहीं ऑपरेट करेगा, ऑटोमेटिकली ऑपरेट करेगा। ऑन करने के लिए ऑपरेट करेगा कि ऑफ करने के लिए करेगा? ऑफ करने के लिए। तो पहले के टाइम में जो था वो क्या था? फ्यूज लगे होते थे और स्विचेस लगे होते थे। स्विच लगे होते थे, सो ऑन करने के लिए एंड ऑफ करने के लिए। सो ये कैसे करते थे? मैनुअली ऑन भी कर देते थे, मैनुअली ऑफ भी कर देते थे। जब हमने फ्यूज लगाया उसी सर्किट में, तो उसका क्या काम है? ऑन तो है ये, एक बार इसको कनेक्ट कर दिया तो मैनुअली आपने ऑन कर दिया फ्यूज लगा करके, लेकिन ऑफ कैसे होगा ये? ऑटोमेटिकली। कब होगा ये? ओवरलोड कंडीशन बोलते हैं, ओवरलोड। हाँ, या शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का ये कम काम करेगा। सो दिक्कत क्या है? अगर आपका फ्यूज ब्लोन हो गया, सो सप्लाई को रिज्यूम करने के लिए आप उसको उसके किट से बाहर निकालना होगा, ग्रिप से फ्यूज को। फिर उस वायर को कनेक्ट करना पड़ेगा उसमें वापस, और फिर वापस आपको उसको प्लग इन करना पड़ेगा, है ना? सो इट इज टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है। सो इसके बाद क्या आया? सर्किट ब्रेकर्स आए। नाम है सर्किट ब्रेकर, बट एक्चुअली क्या है? ये सर्किट मेकर और ब्रेकर दोनों है। सो मेक करने के लिए क्या करते हैं हम? मेक करने के लिए हम इसको मैनुअली मेक करते हैं, है ना? और ब्रेक करने के समय ये ऑटोमेटिकली। लेकिन फायदा क्या है? आपको कोई भी जिस वायर को दी जो है उसको इसमें जो है, फिर हाँ, फिर उसको अमेंड ये करेक्ट। हाँ, सो ये क्या हो जाएगा आपको कि ये आपका, सिर्फ थोड़ा देर आप रुक जाओ, उसके बाद आप इसको फिर से मैनुअली ऑन कर दोगे तो सप्लाई को रिज्यूम करना आसान है। दूसरा क्या फायदा है कि मान लीजिए, नहीं, हाँ, टाइम बचा, करेक्ट, टाइम कंज्यूम जो है आपका, टाइम सेव हुआ। दूसरा क्या होता है कि मान लीजिए कि एक वायर है, ऐसे फ्यूज को दिखाते हैं, हमने इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप में सुना होगा। सो व्हाट इज अ फ्यूज? फ्यूज इज नथिंग। देखिए, आपका जो वायर है उसमें हो सकता है कई सारे स्ट्रैंड्स होते हैं, वायर के स्ट्रैंड, है ना? ऐसे करके बहुत सारे स्ट्रैंड होते हैं जो पैरेलल कनेक्शन है। फ्यूज क्या है? बस उससे लो कैपेसिटी का, कम कैपेसिटी का वायर है। हो सकता है सिंगल वायर हो या दो ही वायर हो, यहाँ 10 वायर आ रहे हैं आपके सप्लाईज। हाँ, तो यस, तो व्हाट हैपेंस जब ये सडन ब्रेक करता है, तो यहाँ पे स्पार्क होता है, क्योंकि यस, जैसे कि आपकी पानी की पाइपलाइन अगर फट गई बीच से, तो क्या वाटर फ्लो तो नहीं रुकेगा ना एकदम से, जब तक कि आप उसको बंद नहीं करें। तो सडन क्या होता है? स्पार्क होता है।
सकता है ये स्पार्क इतना ज्यादा हो कि ये बर्न कर दे उस सर्किट को। ठीक है, तो सर्किट ब्रेकर ने इस प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट किया। सर्किट ब्रेकर में क्या होता है, ऑप्शन होता है ताकि ये जो स्पार्क होगा इसको हम क्वेंच कर देंगे। ठीक है, इस स्पार्क को हम बहुत ज्यादा देर तक टिकने नहीं देंगे। सो दैट इज ऑल्सो द बेनिफिट ऑफ अ सर्किट ब्रेकर। सो ये तो आपके घर की बात हो गई। हम बात कर रहे हैं ट्रांसमिशन लाइन की, तो मैं वही कहना चाह रहा था कि हमें जनरेशन से लेकर के अगर हमने एक ट्रांसफार्मर लगा दिया, ट्रांसफार्मर से हमने जो है वो ट्रांसमिशन लाइन से अगेन ट्रांसफार्मर, सो ये आपका स्टेप अप है, ये आपका स्टेप डाउन है। और फिर यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट कंज्यूमर्स हो सकते हैं, कंज्यूमर 1, कंज्यूमर 2, कंज्यूमर 3। सो अगर ये कंज्यूमर 1 है, ये कंज्यूमर 2 है, ये कंज्यूमर 3 है, सो इसके प्रीमाइस में आने के पहले हम यहाँ पे सर्किट ब्रेकर्स लगा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये चीज हर जगह लगेगी, ये चीज हर जगह लगेगी। हम कहीं भी किसी सिस्टम को अगर डिटैच करना चाह रहे हैं, सो हर पॉइंट पर हमें जो है वो सर्किट ब्रेकर लगाना होगा। तो मेरा ये कहना है कि एलिमेंट्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन में हमें क्या क्या मिल गया। ट्रांसफार्मर मिल गया, चाहिए हमें तो सिर्फ ट्रांसमिशन लाइन, लेकिन कब, जब सब कुछ नॉर्मल है। अगर सब कुछ नॉर्मल रहे, लगा कॉन्टिन्यूअस सप्लाई चाहिए, तब तो हमने ट्रांसमिशन लाइन एक बार कनेक्ट कर दिया, जनरेशन हो रहा है चाहिए। लेकिन हमें पता है कि देयर कैन बी फॉल्ट कंडीशंस, जिस समय की हमें सप्लाई को डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, है ना, तो उस समय हमें जो है वो सर्किट ब्रेकर्स चाहिए। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है कि जब मौसम खराब होता है तो आसमान से गिरती है बिजली। हाँ, बिजली। सो दैट इज नोन एज लाइटनिंग। सो ये क्या है, ये बहुत बड़ा डिस्चार्ज होता है इलेक्ट्रिसिटी का, सडन जो है बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ जो है इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो आके उस चीज पे गिरता है, तो वो कोप अप नहीं हो सकता। आपने देखा होगा पेड़ों में आग लग जाती है, तो तुरंत बन जाता है। नो टाइम, हाँ, उसको बचाने का कोई टाइम नहीं होता, सडन बिजली आई और जस्ट इट बर्न द होल। सो उसी तरह से हमारे जो ये एलिमेंट्स ऑफ पावर सिस्टम है, चाहे वो जनरेटर हो, चाहे वो ट्रांसमिशन हो, चाहे वो ट्रांसमिशन लाइन हो, इन सब को हमें जो है इस लाइटनिंग से सेव करना है। क्या करना है, इसे हमें सेव करना है। सो ये देखा, यस, प्रोटेक्ट करना है। सो प्रोटेक्शन के लिए हम लगाते हैं लाइटनिंग अरेस्टर। प्रोटेक्शन के लिए हम लगाते हैं लाइटनिंग अरेस्टर। अरेस्ट समझते हैं वर्ड, कैप्चर करना। अरेस्ट का मतलब क्या हो गया, कैप्चर करना। सो किसी भी हाउस पे, किसी भी बिल्डिंग पे, बड़ी बिल्डिंग पे जो बहुत ऊंची होती है, या कोई भी पावर सिस्टम इक्विपमेंट जो कि प्रोन टू है कि भाई उस पे जो है वो अगर लाइटनिंग फॉल कर जाए तो ये डैमेज हो जाएगा। ठीक है, अगर लाइटनिंग फॉल कर जाए तो ये डैमेज हो जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं कि वहां पर एक डिवाइस लगा होता है जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं एलए, लाइटनिंग अरेस्टर। ये लाइटनिंग अरेस्टर आपके बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पे भी होता है, और ये जो होता है वाया केबल, केबल आपके अर्थ से कनेक्टेड होता है। ठीक है, कनेक्टिंग वायर, ये अर्थ से आप कनेक्ट। अगर कोई थंडर स्टॉर्म है, और अगर ये लाइटनिंग यहाँ आई, कि कोई भी जो चार्ज होता है वो पॉइंटेड एंड से निकलता है, पॉइंटेड एंड पे गिरता है। तो ये क्या करेगा, कैप्चर कर लेगा, मींस ये अरेस्ट कर लेगा सारे चार्जेस को, और फ्लो करा के अर्थ को भेज, फ्लो करा के अर्थ। इससे क्या होगा, आपकी पूरी बिल्डिंग या जो इक्विपमेंट है वो दोनों सेव हो जाएगा। सो ये भी पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आपका ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, सो आप देखेंगे यहाँ जो बात की गई है, मैंने इसलिए लिखा है एलिमेंट्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन।
सो एलिमेंट्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन में ट्रांसमिशन लाइन, पोल्स, इंसुलेटर, ट्रांसफार्मर, सर्किट ब्रेकर। सो ट्रांसमिशन लाइन को जब आप कैसे टांगोगे एयर में, कैसे उसको लेके आओगे कहीं से कहीं, तो आपको जो है वो पोल चाहिए जिसके ऊपर आप जो है उसको होल्ड कराओ, और फिर जो है वो उस पोल पे रखने के लिए हमें जो है वो इंसुलेटर्स चाहिए, ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी कहीं और ना जाए, सिर्फ वायर्स में रहे, है ना। सो ये जो है आपके एसेसरीज जो है सारे इसी कारण से बनाए गए हैं। तो हम ये समझ गए हैं कि हमें जरूरत तो ट्रांसमिशन लाइंस की थी, लेकिन ट्रांसमिशन लाइन जो है वो हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट कर रहे हैं, और जब हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट कर रहे हैं तो हमें हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन के लिए चाहिए ट्रांसफॉर्मर। सो वन ऑफ द सर्किट एलिमेंट्स हो गया ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसमिशन लाइन जिस वोल्टेज पे लेना है, वोल्टेज को ट्रांसमिट करना है, उस वोल्टेज पर आने के लिए हमें ट्रांसफॉर्मर चाहिए। दूसरा, ट्रांसमिशन लाइन को जब हम कहीं से कहीं लेके जा रहे हैं तो हमें जो है उसको सपोर्ट करने के लिए स्ट्रक्चर्स चाहिए, जिसमें पोल्स हो गए, इंसुलेटर्स हो गए। सो इसको देखिए, इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज एज एक्सप्लेन्ड। जनरेटिंग स्टेशंस आर सिचुएटेड एट फार ऑफ प्लेसेस। बस इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग यूज्ड बाय ऑल। आपका जनरेटिंग स्टेशन यहाँ से हो सकता है कि 500 किलोमीटर पर हो, या हो सकता है 1000 किलोमीटर पे हो, बट इलेक्ट्रिसिटी तो पूरे दिल्ली में या किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हर घर हर जगह इस्तेमाल हो रही है। सो हमें क्या चाहिए, हमें मेथड चाहिए उस जनरेटिंग पावर को हम यहां तक लेके आए, दिल्ली तक लेके आए। तो दिल्ली तक लेके आने को कहेंगे ट्रांसमिशन, और दिल्ली से हम उसके डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में अगर लेके जाए, ठीक है, दैट कैन बी ऑल्सो अ टाइप ऑफ ट्रांसमिशन, क्योंकि आप यूज नहीं कर रहे। और फिर हर एक जो आपके घर के सबसे नजदीक में जो पावर स्टेशन होगा, वहां से डिफरेंट डिफरेंट कंज्यूमर को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो दैट इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मैंने कहा, मिल्क प्रोडक्शन है, कोई भी आप मदर डेयरी ले लो या अमूल ले लो, प्रोडक्शन जो है किसी जगह डेयरी में हो रही है, वहां से बड़े ट्रक्स में और पैकेट्स में जो है उसको ट्रांसमिट किया जाए, चलो भाई अलग अलग डिस्ट्रिक्ट चले जाए, उस डिस्ट्रिक्ट में जा करके जो आपके बूथ होंगे वहां उसको दे दिया जाएगा, और बूथ से डिफरेंट हाउसेस में या कहीं भी जाएंगे, तो दैट इज आपका जो मिल्क बूथ है, दैट इज नथिंग बट अ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। तो सिमिलरली जो आपके कॉलेज में जैसे आप देखेंगे 11 किलो वोल्ट बाय 440 वोल्ट, इट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन। सो व्हाट इज अ सब स्टेशन? सब स्टेशन इज नथिंग बट ट्रांसफॉर्मर्स। आप अल्टीमेटली वहां ट्रांसफॉर्मर्स रख रहे हो, क्योंकि वहां वोल्टेज स्टेप अप हो रहा है या स्टेप डाउन हो रहा है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन साइड में हो तो स्टेप डाउन हो रहा है, अगर आप प्राइमरी ट्रांसमिशन साइड में हो तो स्टेप अप हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं सिंगल लाइन डायग्राम। यहाँ हम जो है 3 फेज नहीं दिखा रहे हैं, हमने यहाँ दिखाया 11 किलो वोल्ट का एक जनरेटर है, ठीक है, 11 किलो वोल्ट का ये जनरेटर है आपका। ये 11 केवी पे जनरेशन हो रहा है, इसको उसके बाद इसने ट्रांसमिट किया। सो ट्रांसमिट करना है किस वोल्टेज लेवल पे? 220 किलो वोल्ट पे हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं, यानी ये जो है ये साइड में हमने 11 किलो वोल्ट फीड किया, और दिस साइड हमने 220 किलो वोल्ट जो है वो ऑब्टेन किया। अब आपका जो है ये दिस इज योर ट्रांसमिशन लाइन। इस ट्रांसमिशन लाइन से हम कई सारे कंज्यूमर हो सकते हैं। तो ये आपका जो है एक रिसीविंग स्टेशन 1 है, मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट 1 है, फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट है, अज्यूम करिए ये डिस्ट्रिक्ट 2 है, या आपका ये सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये रिसीविंग स्टेशन है। इसके बाद जो हो सकता है आपका ये यहाँ से जो है आपको अपने नेक्स्ट स्टेशन को भेजे, क्योंकि अभी वोल्टेज यूटिलाइजेशन लेवल पे नहीं आया, अभी भी क्या है 220 किलो वोल्ट ये साइड था, इस साइड हमने इसको 66 किलो वोल्ट ला दिया। तो आपने देखा होगा टाटा पावर के जो है, अगर जो यहाँ रह रहे हैं नॉर्थ दिल्ली में, टाटा पावर डीडीएल जो है उसके सब स्टेशन आपको दिख जाएंगे, रोहिणी में भी दिख जाएंगे, 66 किलो वोल्ट बाई 11 के भी दिखता है ऐसा, देखा है किसी ने आते जाते? हाँ, ये इसका मतलब है कि कौन से स्टेज पे आप समझ सकते हैं, ये फीडर्स कहला रहे हैं, फीड कर रहा है, फीडर कहेंगे। तो ये आपके जो है स्टेशन है, डिपेंडिंग ऑन कि कैसा कंज्यूमर है, उसके हिसाब से हो सकता है कि हम 66 किलो वोल्ट को ही 11 किलो वोल्ट में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, फर्दर स्टेप डाउन कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट स्टेप डाउन कर रहे हैं। सो ये जो है आपका 66 किलो वोल्ट एक फर्दर स्टेप डाउन है। तो आप देखिए कई कई बार स्टेप डाउन हुए, पहला स्टेज ये था,
66 से 11 किलो वोल्ट। दूसरा स्टेज ये है 66 से 11, सॉरी 66 से 11, हाँ, इस सॉरी ये 66 से 11 नहीं है, दिस इज योर 22 टू 20 किलो वोल्ट से 66 किलो वोल्ट है, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप डाउन। इसके बाद से 66 किलो वोल्ट से 11 किलो वोल्ट इज योर सब स्टेशन। ठीक है, अब ये सब स्टेशन जो है यहां से फर्दर आगे जा रहा है, जैसे आपके कॉलेज में है एबीआईटी में, आप देखेंगे जैसे ही आप अपने गेट में एंटर करेंगे लिखा हुआ है 11 किलो वोल्ट, और 0.4 को किलो वोल्ट को हम 400 वोल्ट भी लिख सकते हैं। देखा है आपने, ये ध्यान दीजिएगा जब भी आप कॉलेज में आना हो तो आपके बिल्कुल गेट के सामने में ये सब स्टेशन है बिल्डिंग। ठीक है, सो ये आपका सब स्टेशन है जो आपके कॉलेज कैंपस में है। अब हम जो यूटिलाइज कर रहे हैं वो 11 किलो वोल्ट यूटिलाइज कर रहे हैं, यहां से डिफरेंट डिफरेंट बिल्डिंग को, एरिया को जा रहा है। ठीक है, यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट बिल्डिंग और एरिया को ये सप्लाई जा रही है। समझ में आ गई बात? सो ये आपको जो है वो लेआउट हो गया। ठीक है, अगर आपको कहा जाए लेआउट बनाने के लिए आप बना सकते हैं, इसमें से कोई पोर्शन पूछा जाए कि भाई ये कौन सी चीज है, ये क्यों है, ये स्टेप डाउन है या स्टेप अप है, तो आप बता सकते हैं। अब इसके बाद आगे चलते हैं फिगर 6.2। ये थोड़ा सा फिजिकल, ये सिंगल लाइन डायग्राम है। 6.2 जो है वो थोड़ा सा आपको फिजिकल अपीयरेंस कैसा है वो बता रहा है। तो मोस्ट रीजन में कह रहा है, शोज इन मोस्ट रीजन अ ट्रांसमिशन सिस्टम मस्ट बी यूज्ड टू कैरी द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखिए इन मोस्ट रीजन नहीं, सारे रीजन में ट्रांसमिशन सिस्टम तो चाहिए ही कैरी करने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फ्रॉम जनरेटिंग स्टेशन टू अ सीरीज ऑफ सब स्टेशन, द ट्रांसमिशन सिस्टम कैरीज द लार्ज क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी which can be most economically transported on relatively thin conductors at high voltage over long distance। तो जो मैंने आपको अभी बताया है उसी का ये लैंग्वेज है कि भाई हमें क्या चाहिए, थिन कंडक्टर्स हम यूज कर रहे हैं। थिन कंडक्टर क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो करंट है वो बहुत ही लो है। तो हमें क्या है कि देखिए, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए। किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है कि उसका लेंथ क्या है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है। ठीक है, और उसकी रेजिस्टिविटी। ठीक है, दिस इज द रिलेशनशिप जो आपको क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म या 9th में पढ़ाया गया है। सो रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स ज्योमेट्रिकल डायमेंशन रो इनटू एल ए। इसका मतलब है कि जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। सो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमें लीस्ट रेजिस्टेंस देना पड़े किसी भी करंट को जब हम फ्लो करा रहे हैं फॉर अ गिवन करंट। सो अगर हम पावर को ट्रांसमिट कर रहे हैं डिपेंडिंग ऑन अमाउंट ऑफ करंट, कि भाई करंट को हमने जो है फोकस किया हुआ है, तो इसका मतलब हमें काफी थिक कंडक्टर्स चाहिए होंगे ताकि उस करंट को लीस्ट रेजिस्टेंस मिले। लेकिन हमें तब क्या होगा, कॉपर का अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाएगा, इट विल बी टू कॉस्टली। ठीक है, तो ये थर्ड एस्पेक्ट है करंट को कम करने का। करंट को कम कर दिया आपने तो इसका मतलब है कि आप थिन वायर भी यूज कर सकते हैं, इसका मतलब आप लो कॉस्ट ट्रांसमिशन कर सकते हैं। ठीक है ना। सो इंजीनियरिंग में बहुत बड़ा हिस्सा है इकोनॉमिक्स का। अगर आप सोच रहे हैं कि हमें इकोनॉमिक्स समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो फिर इंजीनियरिंग जो है वो आप डिसीजन लेवल पे नहीं जा सकेंगे, आपको हर बार इकोनॉमिक्स देखना है ना। इकोनॉमी ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, इकोनॉमी ऑफ यूटिलाइजेशन क्या है। सो इसलिए ये कहना चाह रहा है कि थिन कंडक्टर्स हैं, इसलिए थिन कंडक्टर्स हैं आपके, क्योंकि थिन कंडक्टर पे क्या है आपका कि
चूंकि हमारा जो अमाउंट ऑफ करंट है वो हमने बहुत कम रखा है, सो हम थिन कंडक्टर्स यूज कर सकते हैं। पहला इंफॉर्मेशन जो है आपका ये है, थिन कंडक्टर्स एट हाई वोल्टेज। तो ड्यू टू हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन जो है आप थिन कंडक्टर यूज कर रहे हैं, क्योंकि P इज इक्वल टू VI है। व्हेन वोल्टेज इज हायर है द करंट विल बी लेस फॉर द गिवन पावर, सेम पावर के लिए ध्यान रखिएगा कि मैं एक सेम पावर की बात कर रहा हूं, फॉर द गिवन पावर। ठीक है, जैसे कि आप मान लीजिए कि आपका पावर है 2000 वॉट अज्यूम करिए, तो या तो मैं 200 वोल्ट इंटू 10 एम्पियर करंट यूज करूं, या मैं 2000 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर यूज करूं, या मैं 20,000 वोल्ट 0.1 एम्पियर यूज करूं, या मैं 2 लाख वोल्ट्स 0.01 एम्पियर करंट यूज करूं। तो आप समझ रहे हैं जितना मैं हाई वोल्टेज लेते जा रहा हूं उतना ही अमाउंट ऑफ करंट जो है वो कम हो रहा है कम। जितना अमाउंट ऑफ वोल्टेज कम हो रहा है उतना ही अमाउंट ऑफ वोल्टेज ड्रॉप कम हो रहा है फॉर द, क्योंकि रेजिस्टेंस तो सेम रहेगा ट्रांसमिशन लाइन का, सेम रहेगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना इस बात को। उतना ही आपका जो हीट लॉस है वो कम हो गया फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, ठीक है ना। तो ये आपका जो है पर्पस है हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन का। हिंस हाई वोल्टेज कैन बी ट्रांसपोर्टेड ऑन थिन कंडक्टर्स। सो ट्रांसमिशन वोल्टेज का कैलकुलेशन है 220 किलो वोल्ट, 130 किलो वोल्ट, 110 किलो वोल्ट, 66 किलो वोल्ट। ये सारे कौन से हैं? ट्रांसमिशन वोल्टेज है। ये सब पे ट्रांसमिट हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। सो ट्रांसमिशन वोल्टेज का एग्जांपल भी दे दिया है, 440 किलो वोल्ट कहाँ कहाँ है, सतलुज लिंक प्रोजेक्ट वगैरह है। इन द एरिया ऑफ एनर्जी कंजम्पशन द ट्रांसमिशन लाइन डिलीवर एनर्जी टू द सब स्टेशन विच रिड्यूस द वोल्टेज टू सेफर वैल्यू 33 किलो वोल्ट, 22 किलो वोल्ट, 11 किलो वोल्ट फॉर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट्स रनिंग थ्रू इनहैबिटेड लोकेलिटीज। जहां भी लोग रह रहे हैं, इनहैबिट कर रहे हैं, हैबिटेट्स हैं, वहां के लिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं इसमें। सो यहाँ आ गया टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सो हमने जो है कुछ टर्मिनोलॉजी बना दी, क्योंकि हर बार हम जो है वो यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। सो देयर आर डिफरेंट वोल्टेज लेवल के हिसाब से हमने ये टर्म डिफाइन किया है, प्राइमरी ट्रांसमिशन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। सो प्राइमरी वर्ड का मतलब है जो मुख्य तौर पे करना पड़े, जो प्रधान हो। तो 220 किलो वोल्ट जो है आपका प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन है, 400 किलो वोल्ट भी है, ठीक है, और 765 किलो वोल्ट भी है आज के डेट में। फॉरेन में जाइएगा तो 1500 किलो वोल्ट पे भी ट्रांसमिशन हो रहा है। फायदा देख रहे हैं इसका क्या है? क्या फायदा है? अभी अभी बात की है, क्या फायदा है? यस, इकोनॉमी ऑफ ट्रांसमिशन, लेस पावर लॉस, कंडक्टर जो है उसका रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत थिन कंडक्टर पे होगा। तो आप देख रहे हैं कितना कॉपर सेव हो सकता है, या जो भी आप कंडक्टर, बेसिकली कॉपर पे ही ट्रांसमिशन हो रहा है, अगर ये एल्युमिनियम पे हो रहा है तो आप काफी जो है वो मटेरियल भी सेव कर सकते हैं, कहीं और भी यूटिलाइज कर सकते हैं। सो ये आपका जो है सेकेंडरी ट्रांसमिशन है। इसके बाद जो अगला वोल्टेज लेवल है जिसपे कि हम जो है ट्रांसमिट कर रहे हैं स्टेप डाउन करके, वो है आपका 66 किलो वोल्ट। ठीक है, वो है आपका 66 किलो वोल्ट, यानी हम यहां से स्टेप डाउन कर रहे हैं, 66 किलो वोल्ट पे लेके आ रहे हैं। तो कह रहा है नेक्स्ट लोअर वोल्टेज लाइन फीडिंग एरियाज ऑन आइदर साइड ऑफ मेन ट्रांसमिशन लाइन इज कॉल्ड सेकेंडरी ट्रांसमिशन। एक चंडीगढ़ में जो है 66 किलो वोल्ट का लाइन है, आपके दिल्ली में तो आप दिख ही रहा है हर जगह 66 किलो वोल्ट का है, तो आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब है कि 66 किलो वोल्ट सब स्टेशन में जो लाइन आई है वो प्राइमरी ट्रांसमिशन थी। 66 किलो वोल्ट से निकल करके अब वो टाटा पावर के डिफरेंट डिफरेंट सब स्टेशन को जा रही है जो 11 किलो वोल्ट पे चलेंगे, है ना। ठीक है, 11 किलो वोल्ट पे चलेंगे। सो अब क्या होगा, सब स्टेशन टू सब स्टेशन जब वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एक सब स्टेशन से, बड़े सब स्टेशन से कई सारे सब स्टेशन को जो पावर ट्रांसमिट करेंगे, हम ट्रांसफर करेंगे, दैट इज नोन एज योर सेकेंडरी ट्रांसमिशन, है ना। दैट इज नोन एज, सॉरी, योर
सेकेंडरी ट्रांसमिशन एंड प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो नंबर ऑफ 11 किलो वोल्ट लाइन्स जो है फीड डिफरेंट सब स्टेशन हाउसिंग डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर रिप्रेजेंट्स प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। हाउसिंग का मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर को हमने एक कमरे में बंद कर दिया है, ठीक है। सो आउटडोर सब स्टेशन होते हैं और इंडोर सब स्टेशन होते हैं। सो आपके जो कॉलेज में वो कौन सा सब स्टेशन है? ट्रांसफॉर्मर कहीं देख रहे हैं पोल पे, या ट्रांसफॉर्मर एक बिल्डिंग के अंदर है? आपने अपने कॉलेज ट्रांसफार्मर, हाँ, अपने कॉलेज के प्रेमाइज में कहीं ट्रांसफार्मर देखा है बाहर, या सब स्टेशन के अंदर में बंद है? जी, तो उसी को बोल रहे हैं हाउसिंग। सब स्टेशन हाउसिंग डिफरेंट, सॉरी, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, ये क्या है? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। और उसके बाद आपके लोड अगर सिंगल फेज है तो 230 किलो वोल्ट एक फेज और एक न्यूट्रल यूज कर लिया। और कहीं कहीं थ्री फेज है, जैसे आप मेरी लैब में आएंगे तो वहां थ्री फेज सप्लाई भी लैब में आई हुई है, क्योंकि थ्री फेज मशीन्स हम वहां पे चलाते हैं। ठीक है, तो हमारे जो लैब में है वो दोनों तरह की सप्लाई है। सिंगल फेज सप्लाई भी है जिससे कि बाकी फैंस और ट्यूबलाइट चल रहे हैं, और थ्री फेज सप्लाई भी है जिससे कि हम कोई अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं किसी मोटर पे, थ्री फेज मोटर पे, तो मिलेगी। सो दिस इज योर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज योर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, क्योंकि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ये कहना चाह रहा है कि हाँ, कई सारे कंज्यूमर हैं जो 11 किलो वोल्ट की सप्लाई डिमांड करेंगे। यूज कैसे करेंगे? थ्री फेज से यूज करेंगे, सिंगल फेज से, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ पावर दे आर रिक्वायरिंग। जैसे आटा चक्की वाला, उसको थ्री फेज सप्लाई चाहिए, लेकिन घर में आप सिंगल फेज लेके चलते हैं। ठीक है, नाउ पोल माउंटेड सब स्टेशन, मैं वही कह रहा हूं, ये है आउटडोर सब स्टेशन, जो कि हाउसिंग नहीं है, जो कि एनक्लोज नहीं है, ओपन है। ठीक है, तो आपके जो घर के बगल में पोल्स हैं जिसके ऊपर आप ट्रांसफार्मर देख रहे हो, इट इज ऑल्सो अ सब स्टेशन। बस वहां क्या है, नो बडी इज देयर फॉर होल डे, क्योंकि वो लगातार काम कर रहा है और इट इज ऑपरेटिंग अंडर रेटेड कंडीशन। सो वेरी फ्यू मोमेंट्स आर देयर कि वहां कोई फॉल्ट आएगा। जैसे कि उस ट्रांसफार्मर पे बहुत लोड आ जाए तो आप कहते हैं भाई फ्यूज चला गया, है ना, धमाका होता है धड़ाम से, और आपके जो उस पर्टिकुलर लोकेलिटी में सप्लाई कट हो जाती है, तो वहां आकर के फिर वो जो है फ्यूज उसको चेंज करते हैं। ठीक है, सो ये आपको जो है पोल माउंटेड, जहां भी आप सब स्टेशन वर्ड समझ रहे हैं, समझ लीजिए कि सब स्टेशन का मतलब है देयर इज अ ट्रांसफार्मर। ठीक है, ठीक है, यस। सो ये का जो है वो, हाँ, शक्ल बता रहा है कि ये एच टाइप है। तो आप देखेंगे जो आपके पोल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके पोल्स जो होते हैं जिसपे ट्रांसफार्मर लगा होता है वो कुछ ऐसा ही बना होता है ना, तो इसको, और इस पे ट्रांसफार्मर रखा हुआ होता है ना। तो यहाँ से जो होता है, एक तरफ से आपकी तीन लाइन आ रही होती हैं पोल पर, फिर वहां से वो जो है वो सब उसको मिलता है, दिस इज योर 11 किलो वोल्ट। और फिर यहाँ से क्या होता है, आपके डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होता है। सो इसको कहते हैं हम लोग थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम, ये ट्रांसमिशन के लिए है। और यूटिलाइजेशन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो क्या बन जाता है? थ्री फेज फोर वायर सिस्टम। तो इसमें तीन फेज होते हैं, वैसे कलर से दिखाते हैं, आर वाई बी एंड एन। तो अभी यहाँ क्या है, घरों के या लोड के डिमांड के हिसाब से एक फेज एक न्यूट्रल, एक फेज एक न्यूट्रल। और अगर आपका कोई आटा चक्की है तो उसके पास तीनों फेज है और एक न्यूट्रल है ना, टू रन द मोटर। सो ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो आपके एलिमेंट्स हैं, इसमें आ गए आपके एच आर सी फ्यूजेस, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूजेस, जो प्राइमरी साइड पे लगे होते हैं। ठीक है, ये मिट रहा है। सो इतना हमें अभी नाम जानना है, बहुत इसके अंदर डिटेलिंग नहीं जाननी है क्योंकि वो आपके सिलेबस से काफी बाहर का हो जाएगा। सो एच आर सी फ्यूजेज है, आप इसका ये पर्पज समझिए कि जो हाई रेटेड करंट होते हैं, है ना, एच आर सी मतलब हाई रेटेड करंट नहीं है, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी। हाई रप्चरिंग कैपेसिटी मतलब बहुत हाई करंट जब इससे फ्लो करेगा तब ये रप्चर होगा, तब ये खराब होगा, फिर आप इसको चेंज करेंगे। ठीक है, और गैंग ऑपरेटिंग स्विच होता है एनएसटी साइड। गैंग ऑफ स्विच मतलब कि एक स्विच नहीं है, हो सकता है थ्री फेज है तो एक ही बार में तीनों को डिटैच करेंगे, दैट इज गैंग ऑफ स्विच। लाइटनिंग अरेस्टर है, स्विच एंड फ्यूजेस होते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन साइड पर। जो डिस्ट्रीब्यूशन साइड है, फ्यूजेस जो आपके ट्रांसफार्मर से कहते हैं फ्यूज चला गया बिकॉज ऑफ दीज फ्यूजेस, है ना, ये फ्यूजेस के कारण है। ठीक है, कोई डाउट है? एनी डाउट?
दीज आर फॉर इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो आउटडोर सब स्टेशन जो आपका है वो इसको देखिए, यहाँ थोड़ा सा ये दिखाना चाह रहा है सिंगल लाइन डायग्राम में। इतना आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा अब आ गए हम सामने तो मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर इस फिगर को देखिए आप, ये आपका बता रहा है यहाँ पर कि भाई ये तो आपका हो गया जनरेटिंग स्टेशन, ठीक है। जनरेटिंग स्टेशन के बाद ये वही है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, सॉरी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ओके, ये जनरेटिंग स्टेशन क्या कर रहा है, 33 किलोवोल्ट को दिखा रहा है जनरेट करते हुए। नो, दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट करेक्ट। 33 किलोवोल्ट का जनरेशन हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये डायग्राम सही नहीं है, आप इसको ऐसे बनाइए, सिंगल लाइन डायग्राम है, जनरेटर है, जनरेटर 11 किलो वोल्ट पे जनरेट कर रहा है, या बहुत ज्यादा इंडिया में अभी तो है 22 किलो वोल्ट पे। इसके बाद क्या है कि आप इसको जो है वो ट्रांसफार्मर से स्टेप अप कर रहे हैं। सो ये 22 किलो वोल्ट है। आप इसको जो कहना, 132 किलो वोल्ट ये कह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 200 किलो वोल्ट कह रहा है, या 400 किलो वोल्ट कह रहा है, तो कोई एक ले लेते हैं हम। अगर इसको यहाँ पर, तो हम कहते हैं ठीक है, इस ट्रांसफार्मर से जो है वो इसने मान लिया कि 400 किलो वोल्ट पर इसने ट्रांसमिट किया। अब ट्रांसमिट करेगा तो ठीक है, सर्किट ब्रेकर तो पहले भी लगेंगे, यहाँ भी लगेंगे, एक्चुअल सर्किट ब्रेकर यहाँ भी लगेंगे, क्योंकि अगर हमको ट्रांसफार्मर खराब हो गया है और चेंज करना है तो डिटैच करना पड़ेगा, जनरेटर से भी अलग करना पड़ेगा, ट्रांसमिशन लाइन से भी अलग कर लेगा। और पावर सिस्टम में क्या होता है मैं आपको बता दूं, हर चीज स्टैंड बाई में होता है, तो एक नहीं होता है, कम से कम दो होते हैं, ठीक है। यहाँ भी सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है, यहाँ भी सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है। सो किसी भी ट्रांसमिशन लाइन को ये दोनों से सप्लाई जा सकती है। ये सर्किट ब्रेकर है, ठीक है। डिपेंड करेगा कि अगर इससे चल रहा है तो ये खुला हुआ है, ये क्लोज है, तो ये ओपन है, क्योंकि अगर ये खराब हो गया आपका तो हम यहाँ से स्टार्ट कर देंगे सप्लाई। सो ये थोड़ा सा डायग्राम करेक्ट नहीं है। इसके बाद जो है ये आपको आइसोलेटर्स है, दीज आर सिंपल स्विचेस। और उसके बाद आपका जो है ये अगेन ट्रांसमिशन लाइन से जो है फिर हम आगे की तरफ जा रहे हैं, तो हमने फिर आइसोलेटर लगा दिया, फिर सर्किट ब्रेकर लगा दिया, और उसके बाद अगर हम किसी भी बल्क एरिया में सप्लाई कर रहे हैं तो उसको इसने यहाँ पर शो किया है नीचे तक जाकर के। तो दिस इज नॉट अ कंप्लीट डायग्राम और इसकी जरूरत भी नहीं है, तो इसको मैं स्किप कर देता हूँ, ठीक है। इट इज टू मच फॉर यू। अलग से समझना चाहोगे तो समझा दूंगा, फिलहाल कॉन्टिन्यूटी में इसको हम जरूरत नहीं रखने की, ठीक है। सो ये बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब स्टेशन है, आपको मैंने बता दिया दो तरह के, आप जानो, इंडोर सब स्टेशन है ना आउटडोर सब स्टेशन है। सो आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट जानना है कि आपके जो घरों के बगल में है, दोज आर पोल माउंटेड टाइप सब स्टेशन। हाँ, एंड यस, एंड दोज आर आउटडोर टाइप सब स्टेशन, दैट इज मोर देन एनफ। इसके बाद आप बिल्डिंग के अंदर में भी हैं तो वो बस खाली क्या है, इनक्लोज्ड है, नथिंग बिग, ठीक है। और सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर्स जो है मैं इसमें डिटेलिंग में जाना नहीं चाहूंगा, देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर्स जो सर्किट को ब्रेक करें। सो बहुत तरह के सर्किट ब्रेकर हैं। यहाँ पे इन्होंने क्यों इसको टच कर दिया है कि बिकॉज देयर इज एयर सर्किट ब्रेकर, देन देयर इज ऑयल सर्किट ब्रेकर, देन ऑयल सर्किट ब्रेकर ही बहुत तरह के हो सकते हैं, मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर, उसके बाद वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, देन SF6 सर्किट ब्रेकर, देन मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। सो बहुत तरह के सर्किट ब्रेकर है, डिपेंडिंग ऑन कि हमें स्पार्क को क्वेंच करने के लिए, जो इलेक्ट्रिक स्पार्क होगा उसको क्वेंच करने के लिए हम किस तरह का मीडियम यूज कर रहे हैं। जैसे एयर सर्किट ब्रेकर का मतलब है कि स्पार्क जो है वो इनक्लोज कैबिनेट में एयर है और वो क्वेंच हो जाएगा इतना ज्यादा, यानी क्योंकि डिपेंडिंग ऑन इसकी कैपेसिटी। ऑयल सर्किट ब्रेकर में क्या होगा कि जब हम ये कॉन्टैक्ट को तोड़ेंगे तो ये जो स्पार्क यहाँ क्रिएट होगा वो ये ऑयल के इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी के कारण जो है क्वेंच हो जाएगा, यानी स्पार्क को ग्रो करने का मौका मिलेगा नहीं, कोई कंडक्टिंग मीडियम नहीं है। उसी तरह से अगर वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है तो स्पार्क को परसिस्ट करने के लिए हमें कहीं ना कहीं कुछ मटेरियल मीडियम चाहिए, तो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में वो चीज है ही नहीं। फिर SF6 सर्किट ब्रेकर है जो हेक्सा फ्लोरो ये सल्फाइड होता है गैस, SF6 सर्किट ब्रेकर, जो कि हम जो है इंसुलेटिंग गैस है, और जब स्पार्क क्रिएट होता है तो ये इस स्पार्क के इलेक्ट्रॉन्स को अब्सॉर्ब कर लेता है। सो ये जो है एडवांस बातें हैं, मतलब एडवांस क्या, मोर इन्फॉर्मेशन है, इसकी जरूरत नहीं है। सर्किट ब्रेकर वर्ड समझाना जरूरी था। आपको अगर कोई पूछ भी लेगा तो इतना ही पूछेगा कि सर्किट ब्रेकर क्या है,
तो आप जब भी सोचो तो आप इस बात को ध्यान रखना कि आपको स्विचेस, फ्यूजेस एंड देन सर्किट ब्रेकर, ये तीनों वर्ड मालूम होना चाहिए कि स्विचेस क्या होते हैं, फ्यूज क्या होता है, सर्किट ब्रेकर क्या होता है। ये मैनुअली ऑन और ऑफ होता है, ये मैनुअली ऑन करते हैं लेकिन ऑटोमेटिकली ऑफ होता है, ये मैनुअली ऑन करते हैं ऑटोमेटिकली ऑफ होता है ना, और ये रिप्लेस करना पड़ेगा, इसको रीयूज कर सकते हैं बस। ठीक है, तो हमें ऑयल सर्किट ब्रेकर की डिटेलिंग नहीं देख रही है। गॉट इट? समझ में आ गई बात? ठीक है, ठीक है, जेड बॉक्स जेड पॉट्स जाने की जरूरत नहीं है। नाउ कंस्ट्रक्शनल फीचर्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन का मतलब है वायर्स, ठीक है, और दिल्ली में जो है वो केबल्स चल रहे हैं, आप देखिएगा वीडियो, मैंने इस बारे में बात की हुई है। सो अगर हमें हमें अगर किसी भी जनरेटिंग स्टेशन से कह रहे हैं कि वायर को लेके जाना है इन फ्रॉम एयर, थ्रू द एयर, ओवरहेड वायर्स कहते हैं, आपके सर के ऊपर से निकल रहा होता है, तो कैसे लेके जाएंगे, किसी चीज पे तो इसको टिकाएंगे ना। सो दोस, यस, तो दैट इज सपोर्ट, दैट इज पोल्स, और पोल्स, ये ट्रांसमिशन लाइन किस चीज का बना है, कंडक्टर्स का। अब ये ट्रांसमिशन जो पोल्स आपके हैं, लाइंस के जो पोल्स हैं, ये कई तरह के मटेरियल हो सकते हैं मैकेनिकल एस्पेक्ट में, ये स्टील के भी हो सकते हैं, ये, हाँ वो केबल्स हैं। ट्रांसमिशन दो तरह से हो रहा है, ओवरहेड वायर के थ्रू हो रहा है या अंडरग्राउंड केबल्स के थ्रू हो रहा है। टाटा पावर ने क्या किया है, ओवरहेड केबल्स लगाया है। क्यों? वीडियो देखिएगा, मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि ये अगर ओवरहेड तारें जाती थी तो यहाँ से घरों के बगल में रात में क्या करते हैं लोग, टैपिंग कर लेते हैं ना, इस पे एक तार कनेक्ट किया, सप्लाई आ गई। ठीक है, तो क्या हो रहा है, कंपनी को लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है ना। हाँ, तो इसलिए क्या है, अगर हमने केबल लगा दिया तो क्या होगा, आप उसमें से कुछ, आपके घर के बगल से अगर पोल से केबल जा रही है तो क्या करोगे आप, कुछ कर सकते हो, आपको कनेक्शन ही लेना पड़ेगा। ठीक है ना, आप इसको थोड़ी काट करके इसमें से निकाल लोगे, दैट विल बी टू डेंजरस, दैट नॉट इजी एट ऑल। सो फॉर द सेफ्टी ऑफ पीपल, घरों के बगल से अगर केबल भी जा रही है, इट इज वेरी सेफ, एटलीस्ट मोर सेफ देन अगर जो है वायर जा रही है। ठीक है, दूसरा क्या है कि मान लीजिए कि एक एरिया से दूसरे एरिया वायर जा रहा था, और ये था सप्लाई, ये था डिमांड, बीच में कई लोगों ने टैपिंग कर ली, तो क्या होगा, इसका सडन लोड बढ़ गया, जो कैलकुलेटेड लोड था उससे ज्यादा ये ड्रॉ करने लगा करंट, तो क्या होगा, ओवरलोड कंडीशन भी जनरेट हो सकता है, फॉल्ट रीअकर करेंगे, क्वांटिटी ऑफ सप्लाई ब्रेक करेगी, कंपनी को जो है वो लॉसेस होंगे। तो इन सबको ओवरकम करने के क्या किया, ओवरहेड पे भी हमने केबल रख दिया। ठीक है, तो अभी हम केबल ट्रांसमिशन की बात नहीं कर रहे हैं, दैट इज मतलब मोर मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रांसमिशन सिस्टम। हम जो है वो उन चीजों को लेके चल रहे हैं जो हमें सुपरफिशियल नहीं रहने दें नॉलेज में, है ना, और कॉन्सेप्चुअल हमारा कॉन्सेप्ट डेवलप कर दे। सो सपोर्ट्स हैं, कंडक्टर्स जो हैं आपके ओवरहेड भी हो सकते हैं और अंडरग्राउंड भी हो सकते हैं। ठीक है, अंडरग्राउंड है तो केबल्स हैं, ओवरहेड है तो वायर है। फिर मैंने बोला आपको कि जो कंडक्ट ये पोल्स हैं कई तरह के हो सकते हैं, तो इंसुलेटिंग भी हो सकते हैं अगर वुडन पोल है, और स्टील पोल भी होते हैं डिपेंडिंग ऑन कि क्या हमें स्ट्रेंथ चाहिए। सो अगर ये तार सीधा ही इस पोल से टच करके जा रहा है तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ भी फ्लो करेगी। ठीक है, हाँ, तो क्या करते हैं, यहाँ पे इंसुलेटर्स लगाते हैं, इस इंसुलेटर के ऊपर रखा होता है ये कंडक्टर। ठीक है, सो यही ये बोलना चाह रहा है कि हमें जो है सपोर्ट चाहिए, कंडक्टर्स चाहिए, इंसुलेटर्स चाहिए, और मिसलेनियस आइटम है, जितना पर्पस जानते जाएंगे उतना डिटेलिंग होगी। तो जो आपके सपोर्ट्स हैं, जो आपके सपोर्ट्स हैं उसमें बात किया गया है कि भाई ये देखिए कौन कौन से पोल हैं, वुडन पोल्स हैं, स्टील पोल्स हैं, आरसीसी पोल्स हैं, स्टील टावर्स हैं। स्टील टावर्स जो आपको मैं शुरू से दिखा रहा हूँ, ये वाले लैटिस टावर बोलते हैं, ये जो ट्रस बने होते हैं, ट्रस शायद आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा, है ना, ये टावर जो होते हैं वो अलग हाई ट्रांसमिशन लाइन के लिए होते हैं। सो ये स्टील टावर्स की बात की जा रही है, बाकी जो है वो पोल्स हैं। ठीक है, सो ये स्ट्रक्चर है आपके पोल्स का, एक फ्रंट व्यू दिखाया जा रहा है आपको।
है ना? तो ये क्या है आपके, ये है इंसुलेटर्स, ये आपके जो है वो इंसुलेटर्स हैं, ठीक है? इसी के ऊपर जो है आपका वायर जो है वो रख के आएगा, यानी अगर फ्रंट व्यू देखूं तो ये वायर ऐसे इसके ऊपर आपको टिके हुए होंगे, है ना? ठीक है। तो इससे ज्यादा आपको इसकी डिटेलिंग नहीं पढ़नी है कि भाई ये कितने सर्किट हैं, डबल सर्किट है, सिंगल सर्किट है, ये सब इलेक्ट्रिकल जो है इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स उनके लिए इंपॉर्टेंट है। आपके लिए कि ठीक है, पोल्स होते हैं, वुडन पोल्स होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं। आपको अगर एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप इसके मेरिट डिमेरिट्स पढ़िए, इतना आपके सिलेबस में नहीं है। हमें ये पता होना चाहिए कि एसेसरीज में पोल्स हैं, कंडक्टर्स हैं, इंसुलेटर्स हैं एंड मिसलेनियस आइटम्स हैं। सो ये थोड़ा सा कंपैरिजन कर दिया है, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। दिस इज ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन, ठीक है? इसके बाद हम आते हैं, ये देखिए स्टील टावर, इसकी बात कर रहा था मैं। ये शुरू से यही फोटो दिखा रहा हूँ ना मैं हर जगह। हाँ, इसी की बात कर रहा हूँ, ये स्टील टावर्स हैं, ठीक है? सो ये स्टील टावर्स हो गए। कंडक्टर्स फॉर ट्रांसमिशन लाइन, तो हमें जो है कंडक्टर, सबसे अच्छा जो मटेरियल हो, जो लीस्ट रेजिस्टेंस ऑफर करे, वो कंडक्टर के रूप में हम यूज करेंगे। तो हमारे पास कौन कौन से मटेरियल है जो कंडक्टिंग प्रॉपर्टी रखते हैं? गोल्ड भी है, सिल्वर भी है, कॉपर भी है, एल्यूमिनियम भी है। गोल्ड एंड सिल्वर इज वेरी डिफिकल्ट ना, यूज नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है, बहुत कॉस्टली है। तो हम कौन से दो यूज कर रहे हैं? कॉपर एंड, ठीक है, कॉपर यूज कर रहे हैं और क्या यूज कर रहे हैं? एल्यूमिनियम खासतौर पे। उसके बाद ये फॉस्फोर ब्रॉन्ज है, स्टील कोड एल्यूमिनियम है। सो ये जो है आपका ACSR बोलते हैं, एल्यूमिनियम कोर स्टील रीइंफोर्स्ड। मतलब कॉपर भी अगर बहुत कॉस्टली हो रहा है हमें, अगर कहीं पे अभी क्या था, कॉपर के ट्रांसमिशन लाइन है तो आप देखेंगे थेफ्ट होता है बहुत ज्यादा, कॉपर के तार काट के चले जाते हैं, ठीक है? और इसके इस अगर इकोनॉमिक ट्रांसमिशन करना है तो कॉपर के बदले में दूसरा ऑप्शन है एल्युमिनियम कंडक्टर। बट एल्युमिनियम कंडक्टर के साथ एक प्रॉब्लम है स्ट्रेंथ का। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो एल्युमिनियम कंडक्टर होता है, मैं क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूँ, अगर ये कंडक्टर है एल्युमिनियम, सो कई सारे इसमें जो है वो एल्युमिनियम वायर से स्टैंडर्ड है ना? और क्या करते हैं, इसको स्टील रीइंफोर्स कर देते हैं, एक स्टील वायर जा रहा होता है बीच से, ताकि जो है वो उसके स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए। तो आप देखिएगा यहाँ, शायद यहाँ डायग्राम बनाया हुआ है, दिस इज, ठीक है? सो पहले मैं ACSR की बात करूं, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स्ड है, ठीक है ना, विद स्टील रीइंफोर्समेंट। सो यहाँ लिखा है ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइंस आर नाउ मेड ऑफ एल्युमिनियम कंडक्टर विद स्टील reinforcement called ACSR conductors, aluminum conductor steel reinforced. So aluminum conductors carry most of the current, whereas steel reinforcement is made for giving higher tensile strength to the overhead conductor. ठीक है? सो मैकेनिकल एस्पेक्ट है स्टील, और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी कहां से मिल रही है? एल्यूमिनियम से। समझ रहे हैं? मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो है वो आपस में बंधे हुए हैं एक साथ, दोनों अलग अलग नहीं रह सकते हैं, दोनों को एक साथ चलना पड़ेगा। सो स्टील कोर एल्युमिनियम कंडक्टर कंसिस्ट ऑफ, इसको डिटेल कर दिया, गैल्वेनाइज्ड स्टील कोर अराउंड विच आर स्ट्रैंडेड एल्युमिनियम वायर्स। स्टील कोर्स एल्युमिनियम कंडक्टर प्रेजेंट द लॉन्गर स्पैन देन कॉपर ड्यू टू टेंसाइल स्ट्रेंथ। उसका क्या फायदा है? स्पैन जो है आपका लॉन्गर हो सकता है ना, ज्यादा डिस्टेंस तक आप जो है पोस्ट डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं। लॉन्गर स्पैन का मतलब यहाँ पे ये है कि मैं अगर दो लैटिस पोल लूं, दो अगर मैं ये स्टील टावर लूं, तो अगर ये दूरी जो होगी कॉपर में हो सकता है कम हो, एल्युमिनियम रिइंफोर्स करने के कारण क्या हो सकता है कि मैं ये जो हूं स्पैन को बड़ा कर दूं। अंतर समझ में आ रहा है? कौन सा प्रेफर करेंगे तब आप, कॉपर की एल्यूमिनियम? कौन सा प्रेफर करेंगे? हाँ, क्या फायदा होगा? स्पैन स्पैन बढ़ने से क्या फायदा होगा? क्या फायदा होगा? हाँ, ज्यादा दूरी तय करने से क्या फायदा होगा? स्टील टावर की संख्या घटेगी थोड़ी, स्टील टावर की संख्या भी घटेगी ना, ठीक है? सो हाँ,
तो यहाँ लिख रहा है टू कैरी अ गिवन इलेक्ट्रिकल लोड द डायमीटर ऑफ योर स्टील कोड एल्युमिनियम कंडक्टर हैज टू बी ग्रेटर देन द करस्पॉन्डिंग कॉपर वन, वो तो रहेगा ही। कोरोना लॉस छोड़ दीजिए आप, ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल टू मच इलेक्ट्रिकल है, यहाँ छोड़ दीजिए। डीसी रेजिस्टेंस वगैरह छोड़ दीजिए, इतना ही जानिए आप। आपको क्या है, मैं आपको बताऊं, आपको अगर आपके लिए कि ठीक है एसी एसआर क्यों बोलते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना, इसके अलावा बहुत कंपैरेटिव स्टडी करने की जरूरत आपको नहीं है। तो एसीएसआर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एल्युमिनियम जो है वो करंट कैरी करेगा, लोड को कैरी कर रहा है, और स्टील जो है वो उसको स्ट्रेंथ दे रहा है, टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। कॉपर इज naturally very good, but वही है, it is costly. So use of hard drawn copper conductor is the most important application of overhead lines due to high tensile strength. Copper has the advantage of high conductivity, so high tensile strength copper का भी है, high conductivity है even more than aluminium, so conductor diameter is relatively small. तो benefit यही है आपका कि इसकी conductivity अच्छी है, यानी resistance all अपने आप ही कम है for a given geometric dimension, and the supports are not called on to carry a heavy load. So copper का longer life है, but it suffers from disadvantage, it is not strong enough to allow long span. यही इसकी कमी है। This means more supports and insulators are required than would be in case of stronger material. तो देखिए पोल बढ़ा तो सब कुछ बढ़ा, जब नंबर ऑफ पोल्स बढ़ा तो नंबर ऑफ इंसुलेटर्स बढ़ा, फिर उस पोल को भी सीधा रखने के लिए और भी बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, वो सब कुछ बढ़ गया, है ना। कॉपर का बेनिफिट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, लेकिन कहां पे लिमिटेशंस आ रहा है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी में, कि इसका जो है लॉन्ग स्पैन मेंटेन, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा कि आप मैकेनिकल वाले हैं, आपको मैकेनिकल एस्पेक्ट तो सीधा दिखना चाहिए किसी भी चीज का, तो इलेक्ट्रिकल एस्पेक्ट थोड़ा सा जानना है, मैकेनिकल एस्पेक्ट तो आप यू आर वेरी वेरी फैमिलियर विद। सो कॉपर कंडक्टर हैज लो रेजिस्टिविटी, तो कहीं दिया गया एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम, फॉर द सेम लेंथ एंड पावर size of aluminium conductor to be used is very large but its weight is very small. Aluminium is very very light in weight, है ना। टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात कर दिया है कॉपर की, तो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है देन एल्युमिनियम कंडक्टर। एल्युमिनियम का टेंसाइल स्ट्रेंथ इसलिए कैसे बढ़ाते हैं हम, यस यस यस, अपने आप नहीं ज्यादा होता है एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम का हमें स्टील रिइंफोर्स करना। बाकी क्या है कि एल्युमिनियम इज वेरी लाइट इन वेट, एल्युमिनियम के बर्तन आपने देखे होंगे, है ना, इट इज वेरी लाइट इन वेट। वही अगर आप स्टील के देख रहे हैं या कॉपर के देख रहे हैं तो आपको चलेगा कि इट इज वेरी है। ये availability of copper has become scarce in scarce लिख दे, स्केयर ये स्कैरसिटी हो गई है कॉपर की इंडिया में, ड्यू टू एंड यूज ऑफ कॉपर इन्वॉल्व्स ए हैवी ड्रेन इन फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। सो हमें इकोनॉमी भी देखनी है, एल्युमिनियम कंडक्टर को इसलिए भी यूज करते हैं क्योंकि वो हमारे लिए मोर इकोनॉमिक है, यानी वो कम लागत में हम जो है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक डेटा भी दिया हुआ है एल्युमिनियम और कॉपर का, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि कितना फर्क होता है। तो ये कह रहा है इट इज पॉइंटेड आउट दैट द कंडक्टर साइज, अगर आप देखें फॉर एल्युमिनियम इज denoted by their equivalent copper size. So if the dia of aluminium wire is 1.3 mm, 4 mm dia of copper is 1.05 mm. So diameter जो aluminium wire यूज कर रहे हैं वो कम से कम सवा गुना ज्यादा है ना। सिंपल एक लैंग्वेज में 1.28 को मैं नियर बाय याद रखूं 1.25, सो आपको ध्यान रहेगा ये आंकड़ा, ये ठीक है, सवा गुना के आसपास जो है वो डायमीटर है एल्युमिनियम वायर। सो ये आपका जो है वो एलिमेंट्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन्स हैं। सो एलिमेंट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन में मेरा जो पर्पस था बताने का वो ये है कि एलिमेंट्स ऑफ ट्रांसमिशन, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन एंड व्हाई दे आर द एलिमेंट्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। सो पहला ये है कि ट्रांसमिशन लाइन तो बस ठीक है, हमें कंडक्टर चाहिए, क्या चाहिए हमें, ट्रांसमिशन लाइन का तो मतलब है कि ऑल वी नीड इज अ कंडक्टर। हमें तो ट्रांसमिशन करने के लिए सिर्फ एक चीज रिक्वायर्ड था, और वो था, लेकिन क्या है कि कंडक्टर कैसे लेके जाएंगे जमीन पे, नहीं ना। तो कंडक्टर को हमें ओवरहेड कंडक्टर बनाना पड़ा, है वो कंडक्टर, तो कैसे लेके जाना पड़ा, एज अ ओवरहेड। ओवरहेड करने के लिए हमें क्या चाहिए, पोल्स,
चाहिए या टावर चाहिए, या स्टील टावर या पोल्स, और उस पोल्स पे क्या होगा, सपोर्ट्स, सॉरी सपोर्ट्स चाहिए, उसमें पोल्स हैं, टावर्स हैं, है ना, और उस पोल्स और टावर्स के साथ जो और एसेसरीज हैं वो हैं इंसुलेटर्स। उसके अलावा मिसलेनियस आइटम्स है जिसके डिटेल में आप नहीं जा रहे हैं इस कोर्स में, बट आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ठीक है और भी बहुत कुछ हो सकते हैं। सो अगर आप कुछ नई चीज देखें तो उस समय उसको गूगल कर सकते हैं कि चलो ये चीज क्या थी, बट सिलेबस रिक्वायर्स कि यू मस्ट हैव एन ओवरव्यू ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। सो एनी प्रॉब्लम विद दिस चैप्टर? मैंने आपको जो वीडियो भेजा है दैट इज मोर देन एनफ, बट ये चैप्टर इस बुक से भी मैंने कंप्लीट करा दी है। सो यू हैव टू टाइप्स ऑफ मटेरियल फ्रॉम माय साइड, वन ऑफ दिस बुक एंड वन इज ऑफ द स्लाइड शेयर जो मैंने समझा दिया, उसको भी एक बार जाके आप, एनी डाउट? ठीक है ना, इसको ध्यान से देखिए, लाइन बाय लाइन बुक को पढ़ना सीखिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो जितने दे रहा हूं मटेरियल वहीं से डिजाइन होंगे। ठीक है, अगर आपने उसको समझा है, क्वेश्चंस थ्री तरह की, देयर कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। सो इनडायरेक्ट क्वेश्चन विल टेस्ट योर आईक्यू आल्सो, कि आप जो है वो पढ़ने के बाद उसको कोरिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं, नथिंग बिग, कोई कॉन्सेप्चुअल नहीं है, बट वो आपके उसको चेक करेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसको मैं जरा स्टॉप करूंगा यहाँ पे एक बार।